دشمن مکروہ کھیل۔ امن میں رکاوٹ کون؟ طالبان کی حمایت کا اشارہ۔ بائیڈن کی وارننگ۔ سندھ حکومت کا یو ٹرن۔ تعلیم بچاؤ تحریک۔ تحقیقات میں تیزی۔ اور پہلے کھلاڑی ناکام۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ گوادر حملہ چین اور پاکستان کے معاشی ویژن کے خلاف تخریب کاری کا ایک اور کھیل ہے۔ ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ دشمن ہمارے عزائم کو کمزور نہیں کر سکتا، مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ سازشیں کرنے والے وہی لوگ ہیں جو علاقائی امن میں رکاوٹ ہیں۔ کاکل اکیڈمی میں خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دنیا پر واضح کیا کہ وہ افغانستان کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان نے افغانستان میں بدامنی کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ دنیا طالبان کی حقیقت کو تسلیم کرنے لگی۔ ترکی، روس، برطانیہ اور چین، نیٹو سمیت کئی ممالک نے طالبان کی حمایت کا اشارہ دے دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ کہا ترکی افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے کام کرتا رہے گا۔ روسی صدر نے صاف کہہ دیا کہ طالبان ملک کے بیشتر حصے پر قابض ہیں، ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ چینی عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ افغانستان کو میدان جنگ سمجھنے کے بجائے اس کی مدد کرنا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو برطانیہ طالبان کے ساتھ مل کر بھی کام کرے گا۔ طالبان کو بتا دیا ہے کہ اگر انہوں نے انخلا کے آپریشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تو امریکہ کی جانب سے فوری اور بھرپور رد عمل آئے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ، کہا لوگوں کو نکالنے کے لیے مزید فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، ہمارا طالبان سے معاہدہ ہے کہ وہ انخلا میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے نہایت دل شکن رہا، ہم نے بدحواس لوگوں کو انتہائی بے تابی کے عالم میں دیکھا ہے، یہ سب قابل فہم ہے، وہ خوفزدہ ہیں، وہ اداس ہیں، وہ غیر یقینی کے شکار ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے اتحادیوں کی جانب سے ہماری ساکھ پر کوئی سوال نہیں دیکھا، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ It stands by its commitment that we've made to these people and includes other vulnerable Afghans such as women leaders and journalists. We've established the flow of flights and we've increased the number of people who are moving out of the country. But let me be clear, any American who wants to come home, we will get you home. But make no mistake, this evacuation mission is dangerous. As we continue to work the logistics of evacuation, we're in constant contact with the Taliban, working to ensure civilians have safe passage to the airport. We made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport, including from the ISIS affiliates in Afghanistan who were released from prison when the prisons were empty. افغانستان کی تعمیر نو کے لیے ترکی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کا ترکی پر اعتماد کا اظہار، کہا ہمارا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے اور ترکی سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ چین کے کردار کو بھی سراہتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملکی تعمیر نو میں بھی چین کو شراکت دار بنانے کے لیے مدعو کریں گے۔ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے افغان رہنما کابل پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کے بجائے جامع حکومت کے قیام کو ترجیح قرار دے دیا۔ طالبان نے ملک کی تعمیر نو پر بھی غور و خوض شروع کر دیا۔ ہم افغانستان کی تعمیر نو کریں گے اور ہر علاقے کو نئے سرے سے استوار کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی باعزت اور مضبوط عالمی ملک ہے اور عالمی برادری میں اہم مقام رکھتا ہے۔ چین سے متعلق سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ چین نے افغانستان میں امن اور مفاہمت کے فروغ میں تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ ملک کی تعمیر نو میں بھی چین کو شراکت دار بنانے کے لیے مدعو کریں گے۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी मीडिया पर उजागर करने का टास्क सौंप दिया। उन्होंने हिदायत की कि अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया जाए। आलमी मीडिया पर भी पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ आना चाहिए। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने इजलास के दौरान वज़रा को अफगानिस्तान से मुतालिक हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह किया। शुरका को अफगानिस्तान में जारी गैर मुल्की बाशिंदों के अखराज, चमन और तुरखम बॉर्डर्स की सूरत हाल, PIA की ऑपरेशंस और पाकिस्तानी सिफारत खाने की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की सहाफ़ियों के इनखला के हवाले से इक़दामात से आगाह किया। फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र सहाफ़ियों की सहूलत के लिए वज़ारत इत्तलात में खुसूसी सेल कायम किया गया है। हम अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत की तश्कील चाहते हैं जिस पर तमाम ग्रुपों का इत्तेफाक हो। हम चीन, तुर्की, अमेरिका, बरतानिया समेत तमाम इलाकाई ममालिक के साथ राब्ते में हैं। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी का कहना था कि जब TTP को हिंदुस्तान से फंड्स नहीं मिल सकेंगे तो उसकी कमर टूट जाएगी। हमारी बुनियादी शर्त यही है कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। हमारा तालिबान पर कंट्रोल नहीं है। हमने तालिबान और अमेरिका को मुज़ाकरात पर आमादा किया था, लेकिन बदकिस्मती से अशरफ गनी का रवैया दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने पर कलअदम तहरीक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि TTP से मुतालिक आइंदा अफगान हुकूमत से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल की हिमायत करता है। काबुल एयरपोर्ट पर बेचैनी और अफरा तफरी बरकरार, लोगों का हुजूम कम ना हो सका। तालिबान और गैर मुल्की फोर्सेस की लोगों को हटाने की हवाई फायरिंग वक्फे से जारी है। अमरीकी फौज ने तवील वक्फे के बाद लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन का दोबारा आगाज कर दिया। अमरीकी और नेटो फौज का छोड़ा हुआ असलहा बड़ी तादाद में तालिबान के कब्जे में आ गया है। 40 से करीब एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका इन हथियारों को तबाह करने का मंसूबा बना रहा है। PIA का काबुल से खुसूसी ऑपरेशन, कौमी एयरलाइन की मजीद 2 खुसूसी परवाजें काबुल से 390 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गईं। परवाज में पाकिस्तानी मुसाफिर, अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार और मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार इस्लामाबाद पहुंचे हैं। CEO PI ने काबुल एयरपोर्ट पर नेटो अफवाज के हुकाम से अहम मुलाकातें की हैं। सिंध में बच्चों की तालीमी मुस्तकबिल पर सवाल उठ गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्कूल मजीद 1 हफ्ते तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला का कहना था कि सिंध में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। स्कूल अब 23 अगस्त से नहीं खोले जा सकेंगे। तालीमी इदारे अब 30 अगस्त को खुलेंगे। उनका कहना था कि अब स्कूल टीचर्स और बच्चों के वालिदैन को भी अपना कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। हम 1 हफ्ता और स्कूल, इस वक्त जो पोजीशन है कि नहीं खोलेंगे, हम चाह रहे हैं कि इस 1 हफ्ते में स्कूल टीचर्स, बच्चों के पेरेंट्स जो स्कूल भेजेंगे वो वैक्सीनेशंस कराएं। अगर मैं अपना बच्चा भेजना चाहता हूं तो मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये एक रिजीम फॉलो करके 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह वैक्सीनेशन पे थोड़ा ज़ोर दें। और ना जैसे बच्चों को तो वैक्सीनेट नहीं कराना अभी, लेकिन उनके वालिदैन को उसी बच्चे को आने दें जिसके वालिदैन अपना सर्टिफिकेट जमा कराए। बड़ा मुश्किल काम है ये करना, लेकिन ये थॉट है। सिंध में मुसलसल कोरोना बंदिशों की बिना पर तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 23 अगस्त से स्कूल ना खोलने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। कहा सिंध में अब तालीम बचाओ मुहिम शुरू की जाएगी। बच्चों को सड़कों पर तालीम देंगे। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन का कहना है कि सिंध में स्कूलों की बंदिश के बिना पर 11 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। 10 लाख नए बच्चों ने दाखिला ही हासिल नहीं किया। वालिदैन का कहना है कि बच्चों की तालीम का बहुत नुकसान हो चुका। सिंध हुकूमत अब रहम करे। सिंध में स्कूल मजीद 1 हफ्ते के लिए बंद, तलबा की तालीमी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास, सिंध में तालीम बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला। बयान में तारिक शाह का कहना था कि सिर्फ सिंध में बच्चे तालीम से महरूम क्यों रखे जा रहे हैं। स्कूल ना खुले तो 23 अगस्त से बच्चों को एहतजाजन सड़कों पर तालीम देंगे। और सबकी मुशावरत के बाद जो है आज हमने ये फैसला किया है कि तालीम बचाओ तहरीक का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। 23 अगस्त से तालीमी सिलसिला बहाल किया जाए, वरना जो फैसला आज हमने किया है उस पर हम अटल है। इंशाल्लाह पूरे सिंध भर में तमाम तालीमी इदारे अपने स्कूल के बाहर
टैक्स लगाकर तालीमी सिलसिला शुरू कर देंगे। स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन ने तालीम की बर्बादी के होलनाक आदाद शुमार पेश कर दिए। बयान में चेयरमैन एसोसिएशन हैदर अली का कहना था कि सिंध में गुज़िश्ता 2 सालों में 11 लाख के करीब बच्चों ने स्कूलों को खैरबाद कह दिया। 10 लाख से ज़ायद नए बच्चे भी स्कूलों में दाखिल नहीं हो सके। बच्चों की तालीम मुसलसल मुतासिर होने पर वालिदैन भी फट पड़े। सबसे पहले तो इस बात का बेनता है कि सिंध गवर्नमेंट देख ही नहीं रही कि बच्चों की तालीम का किस कदर ज़या हो रहा है। तो बच्चे जब स्कूल नहीं जाएंगे, घर पे भी बच्चे जो माहौल बन गया है बच्चों की वजह से माँ बाप भी परेशान हैं। बच्चों की तालीम पहले ही ख़राब हो चुकी है, कितने महीनों से स्कूल बंद हो गए हैं, फिर दोबारा बंद करें, ये बहुत ही बुरा कर रहे हैं। वालिदैन का कहना था कि बच्चों की तालीम का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के तहत कोई भूखा न सोए प्रोग्राम में तौसी का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के तहत लाहौर, मुल्तान और गुजरांवाला में भी फूड वैन्स रोज़ाना मुस्तहकीन को रोज़ाना दो वक्त खाना फराहम करेंगी। हुकूमत के एहसास प्रोग्राम में अहम पेशरफ्त, कोई भूखा ना सोए स्कीम में तौसी अमल में आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने प्रोग्राम की लाहौर, मुल्तान और गुजरांवाला के लिए तौसी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुसूसी तकरीब हुई। एहसास प्रोग्राम के सरबराह सानी निश्तर ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम को सराहते हुए कहा कि इसकी बदौलत नादार अफराद को बाइज़्ज़त तरीके से पेट भरना मुमकिन होगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का इस बारे में ट्वीट, उनका कहना था कि कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का दायरा 19 शहरों तक फैलाया जा रहा है। अक्टूबर तक 40 फूड वैन्स मैदान में आ जाएंगी और यौमिया 40,000 अफराद को रोज़ाना 2 वक्त का खाना मैसर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुनिया के कलेदी वेंचर सरमायाकारों की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों की कंपनी एयरलिफ्ट में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि हाल ही में इस कंपनी ने 85 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की गई है। पाकिस्तान में बेपनाह गुंजाइश है, कारोबार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत मौक़े पैदा करने का पुख्ता अज़्म किए हुए है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का लंगर ट्रक के इजरा पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जवाब। कहा, पूरे पाकिस्तान को भूखा करके कहते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा। इमरान खान की वजह से हर रात 5 करोड़ बच्चे और 8 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। मरियम औरंगजेब बोली, इमरान साहब आपने लंगर वाले ट्रक का नहीं 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर का वादा किया था। अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर कहते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा। महंगाई 3% से 17% पर पहुंचा दी और कहते हैं कि कोई भूखा नहीं सोएगा। आटे में डकैती से एटीएम्स के लिए 225 अरब और गरीब अवाम के लिए लंगर का ट्रक। आटा, चीनी, खाने पीने की अशिया महंगी करके अवाम के सामने अब नया ड्रामा कर रहे हैं।